दोस्तों से पूछा, एक कंसल्टेंसी से पूछा, अंटिल मैं आपके पास आया, जहाँ पे Right. आपने बोला डेफिनेटली हमारे को वीजा मिलेगा। Right. आपने बोला, फिर मैंने अपनी जो है 1-2 बंदों से जो है यूएस में इंक्वायर किया, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन काफी सारी पढ़ता रहा, मेरे को कहीं नहीं लिखा मिला भी 20 ईयर्स के बाद मेरे को वीजा नहीं मिलेगा। तो True. दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस। तो फिर मैंने उनके पास जब अप्रोच किया अपने यू मेड माय प्रोसेस लिटिल इजियर एज वेल। ऑफ कोर्स वीजा काउंसलेट जो है आपके फेस को देख के वीजा देता है, आपकी स्टोरी को देख के, और आपकी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं स्टोरी देखते। होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट तो देखा ही नहीं उसने, मेरा एक डॉक्यूमेंट देखा सिवाय पासपोर्ट के और एडमिशन लेटर के। Hello everyone, so finally the wait is over. Many of you were asking me कि दीप जी कहाँ है जिनका वीजा आया है 21 इयर्स के गैप के साथ, और काफी सारे तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये पॉसिबल है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना जिसका वीजा आया है वो आपको खुद बताए कि कैसे ये पॉसिबल उनके लिए हुआ और कैसे ये आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। So welcome Mr. Deep, how are you? Thanks Rohit, thanks Tan, my friend. Actually I got really good help from your side, so I'm happy to be here actually today. Thank you. Now I want you to help others. काफी सारे लोगों के मिथ थे कि 28 ईयर के साथ बाद उन्हें वीजा नहीं मिलता। ज्यादातर एजेंट्स ने ये मिथ बनाए हैं, जब उन्हें लगता है कि ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो मना ही कर देते बंदे को। तो आप बताइए आपकी एज क्या है सबसे पहले तो? First of all, I'm 90-80 born, so 90-80 if you born. count my age, this is 41 years right now. Okay. And आपकी Alright, आपकी I'm लास्ट sorry. क्वालिफिकेशन? Alright, I have done my BSc way back in 2001. Okay, Right. and if you count my gap, there is a 20 years gap in my education currently to till date. So first of all, as I told you, first of all, big thanks to you because of your consultancy, because of your assistance. I'm here today. Right now, I'm in the US. Thank you. I've already started my classes as well, and Oh, I'm great. sorry I was not able to get the time for you earlier. So I know. right now we are here. So let me tell you the process. It's a very simple one. First of all, this is entirely a myth that True. we cannot get the visa if we have a gap. True. Okay, you need to understand, if you have a gap, you have to fill the gap in order to get the visa, because Right. nobody will like to give the visa to those person who is not doing anything. Yeah. You are doing something. You must like those people who are the experienced people, who have the Right. mind, who have the talent. Definitely they'll be more happy to give the visa. True. True. It's definitely a myth from a lot of consultants, not a lot of consultancy, 99.9% consultancy in the market, except you, I will say. True. So where they say that if you have so much gap or after 10 years or 8 years, you are not going to get the visa, that is entirely wrong. Right. Nowhere it is written that you cannot get the visa if you have a gap. No university tell that one. Of course, कहीं भी there लिखा are नहीं some हुआ particular ये। university. Absolutely, there are particular university, but if you count on the scale of 100, there's university will be only 2 or 3%. So 97% universities, if you are matching to their curriculum or if you are matching to their course, definitely you are going to get accepted. If universities are ready to give you the I-20, I didn't think so visa counselor Right. should be having any hesitation to give you the visa until unless you tell them the real story why you want to get the visa. You have to come up with the story. In my case, let me tell you, I was working from last 20 years after my graduation. आप हिंदी में बताओगे प्लीज, हमारी काफी सारी ऑडियंस ना हिंदी ऑडियंस है। हाँ। Okay, I'm sorry. Yeah. Okay, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। जब मैं वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहा था तो मेरा सिचुएशन भी सेम था। सेम था, Okay, डाउटफुल। यहाँ पे सिचुएशन ये सेम था, मेरे दिमाग में वही था, मेरे को वीजा पहली बात तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट कर भी लिया, वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, एक कंसल्टेंसी से पूछा, अंटिल मैं आपके पास आया, जहाँ पे Right. आपने बोला डेफिनेटली हमारे को वीजा मिलेगा। Right. आपने बोला, फिर मैंने अपनी जो है 1-2 बंदों से जो है यूएस में इंक्वायर किया, फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन काफी सारी पढ़ता रहा, मेरे को कहीं नहीं लिखा मिला भी 20 ईयर्स के बाद मेरे को वीजा नहीं मिलेगा। तो दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस। तो फिर मैंने आपके पास जब अप्रोच किया अपने यू मेड माय प्रोसेस लिटिल इजियर एज वेल। ऑफ कोर्स जब मैं वीजा के लिए गया, अटेम्प्टेड इन द दिल्ली, तो मेरा दिल्ली में इंटरव्यू हुआ था, अप्रैल में हुआ था। आई वाज अबाउट टू फ्लाई इन मई में उड़ना था, लेकिन ट्रैवल बैन के कारण मेरे को कोर्स जो है शिफ्ट करना पड़ा। ऑफ कोर्स देखो, मेरा कोर्स शिफ्ट करने की ऑप्शन भी उन्होंने दी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। दैट वाज अ स्मूथर प्रोसेस। तो जब मैं वीजा इंटरव्यूअर के पास गया, डेफिनेटली उसने मेरे को पूछा, तू इतने साल के बाद क्यों पढ़ना चाह रहा है? तो मेरी स्टोरी जो थी जो उसको जेन्युइन भी लगी, और मेरे एक्चुअल में जेन्युइन भी है। मैं ये सोच रहा था, अभी तक जितना भी मैंने काम किया है, छोटी छोटी कंपनियों में काम किया है, देयर वाज नॉट अ बिग कंपनी। तो मेरा इंटेंशन था बड़ी कंपनी में काम करने का, और मैंने बहुत बार अप्लाई भी किया।
किया और अप्लाई करने के बाद मेरे को ज्यादातर आंसर नहीं आया, अगर आए भी तो रिजेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे आपके पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है, जो कि पीजी है। तो जब मैंने अपने दोस्तों से इंक्वायर किया तो उन्होंने बोला सबसे अच्छी बात तो यही होगी अगर आपको इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाए, उससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। और जब मैंने बड़ी कंपनियों में अपने दोस्तों से इंक्वायर किया, अगर बोले अगर आप लेके आ जाओगे तो आपका पैकेज भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा अगर आप आके इंडिया में काम करते। सो दैट इंस्पायर मी अ लॉट। तो जब मैं वीजा इंटरव्यू के पास गया, मैंने एग्जैक्टली यही बोला, मेरे को बड़ी कंपनियों में काम करना है, मेरे को वीजा चाहिए। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने अपना एक्सपीरियंस शो किया वहां पे, ठीक है। ऑफ कोर्स यू हेल्प मी इन द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। तो उसको जब मेरी स्टोरी पता लगी, उसने सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरी स्टोरी पूछी और साथ में ये पूछा आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया, जिसका आंसर आपने मेरे को पहले ही बताया हुआ था। राइट, ठीक है। वो जब मैंने अप्लाई किया तो उसने 1 ही मिनट के बाद बोला आपका वीजा अप्रूव हो गया, यू आर हैप्पी टू गो टू द यूएस। देयर वाज नो थर्ड क्वेश्चन। तो आई वाज शॉक्ड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मेरे को ये लग रहा था हो सकता है 1-2 रिजेक्शन हो जाएंगे, जो आपने बोला था अगर वो भी किया तो तीसरा भी अटेम्प्ट करेंगे। पहले नहीं आ गया। राइट। तो कहने का मतलब ये है, आपने जैसे बोला था अगर I-20 हमारे को मिल जाता है, ठीक है, 1 अटेम्प्ट नहीं, 2 नहीं तो तीसरे में नहीं तो चौथे में आ ही जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा क्योंकि I-20 आने तक जो है हमारा 80% काम तो हो जाएगा। तो I-20 का प्रोसेस भी आपने बहुत स्मूथ कर दिया था। यहाँ पे मेरे को 1 छोड़ के 3 कॉलेजेस में एडमिशन आए थे, जिसमें से हमारे को 1 चूज करना था। जाके जो है हमने शेयर किया और आज हम आपके सामने हैं सर, हम जहाँ पे यूएस में बैठे हुए हैं। ग्रेट। अच्छा, लोगों का एक और मिथ है, या थैंक यू, लोगों का एक और मिथ है जी कि दिल्ली एम्बेसी में इंटरव्यू बड़ा डिफिकल्ट होता है, दिल्ली नहीं जाना कहीं और जाना, इसके बारे में कुछ बताओगे? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात आपको मैंने यही पॉइंट आउट किया था, आपकी स्टोरी जेन्युइन होनी चाहिए। आपको पंजाब से, अगर आप पंजाब से दिल्ली सबसे पास नहीं जा रहे, अनटिल अनलेस आपको वहां पे वीजा अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, वीजा अपॉइंटमेंट है, अगर आप वहां पे छोड़ के मुंबई जाओगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होगा जब दिल्ली में अपॉइंटमेंट है, मुंबई में क्या करने आए, मुंबई में क्या कर। राइट। वीजा काउंसलेट जो है आपके फेस को देख के वीजा देता है, आपकी स्टोरी को देख के, और डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देखते होने चाहिए। डॉक्यूमेंट तो देखा ही नहीं उसने, मेरा एक डॉक्यूमेंट देखा सिवाय पासपोर्ट के और एडमिशन लेटर के। राइट। उनका एक ही है, आप जेन्युइन हो हम आपको वीजा देंगे, आप झूठ बोल रहे हैं हम आपको कभी वीजा नहीं देंगे। तो आपको अपनी स्टोरी जेन्युइन बनानी है। ऑफ कोर्स उसके पीछे हम लोगों को मालूम है क्या डॉक्यूमेंट लगते क्या नहीं लगते, लेकिन उसके सामने स्टोरी जेन्युइन बनानी है। और आप दिल्ली की अगर आप अपॉइंटमेंट छोड़ के मुंबई में जा रहे हो, कलकत्ता में जा रहे हो, हैदराबाद में जा रहे हो या चेन्नई में जा रहे हो, तो पहला क्वेश्चन यही होने वाला है जब वहां पे डेट्स थी वहां छोड़ के आप इधर क्यों आए, आप कैसे जस्टिफाई उसको करोगे। राइट। अनटिल अनलेस आपको कोई वहां पे रेजिडेंशियल जो है घर है वहां पे आपका, या कोई आपका रिलेटिव्स रहता है और जहाँ 6-8 महीने से उधर ही रह रहे हो, देन यू कैन गिव दिस रीजन। पर जब आपको डेट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा, मेरे को आज तक तो मेरे को काफी देर काम करते हो गया, मेरे सामने काफी सारे मेरे दोस्तों ने लगवाया, किसी ने ऐसा बात तो नहीं बोला दिल्ली में नहीं लगता। खैर किसी का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है, बट वी हैव टू सी द अदर साइड आल्सो, उसके डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे क्या, उसने अपनी स्टोरी जेन्युइन बनाई क्या, हमारे को नहीं मालूम। हाल हमारे को मालूम है उसका वीजा रिजेक्ट हो गया, लेकिन क्यों हुआ वो कोई भी नहीं बोलेगा। राइट। अच्छा, एक बात और है, काफी सारे लोग जो आपकी एज में या आफ्टर 35 होते हैं, उनका एक और कंसर्न होता है कि काफी देर हो गए पढ़ाई करे, अभी यूएस में जाना तो है लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए पढ़ना भी पड़ेगा। थोड़ा इसके ऊपर भी आप बताओगे, हाउ यू गोना मैनेज योर स्टडीज? ओके, आपको अगर सही तरीके से बताऊं आज की डेट में यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस है। ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस सारी उम्र नहीं रहने वाली, देयर आर डिफरेंट वे। अगर आपका यूएस आने का पर्पस पढ़ाई है फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, पढ़ो। लेकिन आपका अगर पढ़ाई छोड़ के दूसरे पर्पस भी है तो उसके भी तरीके हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, जो बंदा यहाँ पे आएगा उसको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा, जो चीजें मेरे को नहीं मालूम थी यहाँ पे आके 1 हफ्ते 10 दिन में मेरे को बहुत सारी चीजें मालूम, सब पता चल गया, सब अवेलेबल है। आपका कोर्स अटेंड करने से लेके आपके असाइनमेंट लिखने तक, आपके असाइनमेंट लिखने से लेके आपके एग्जाम लिखने तक सब कुछ मैनेजेबल है। सब कुछ डिपेंड है आपका पर्पस क्या है, उसके ऊपर आपका पर्पस क्या है। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इंडियंस का पर्पस एक ही है सर, वहां पे जाके काम करना, यू नो इट राइट। काम भी करो और यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऑप्शंस भी जो अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको शायद उसको समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। राइट। आप जब यहाँ पे डे 1 से आओगे, आप डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करोगे। थोड़े लोग यूएस के रहेंगे, थोड़े लोग इंडिया के रहेंगे, थोड़े फ्रेशर्स रहेंगे, थोड़े एक्सपीरियंस रहेंगे। राइट। तो जब वो सारे दिमाग एक जगह आएंगे ना तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको कहने का मतलब एक ही बोल सकता हूँ, अगर आप यूएस में आ गए
तो आप अपना खर्चा प्लस स्टडी का खर्चा निकाल सकते हो। अभी के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, इतना ही बोलना चाहेंगे। तो गाइस वेरी सिंपल, आप अपना I-20 ले लो, उसके बाद वीजा ले लो, वहां जाके सब पॉसिबल है। एज वाला फैक्टर कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा, सिर्फ यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दी, एम्बेसी में जाओ दिखाओ जी मुझे ये एडमिशन मिल चुकी है, मैंने पढ़ने जाना है। उन्हें नहीं लेना देना 45 के हो या 25 के हो। देन जो आपके एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप ये गैप के बाद अगर आप डालना चाहो, यू हैव टू कन्विंस देम आप वहां से वापिस आ रहे हैं चाह रहे। एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है आपके लिए जो सबसे अच्छी बात है, जो मैंने यहाँ पे आके मालूम की, आप जो कोर्स वहां पे ले रहे हो अपनी वीजा लेने के हिसाब से करो, बाकी यहाँ पे आके आप अपना कोर्स चेंज करने की ऑप्शन भी है आपके पास। और राइट, जैसे मेरे केस में मैंने लिया था वहां पे MBA, और वो मेरा MBA जो है मेरी स्टडी के रिलेटेड था, मेरे वर्क के रिलेटेड था, और यहाँ पे आके मैंने उसको IT कोर्स में कन्वर्ट करा लिया, और उसके कोई चार्जेस नहीं है, बिकॉज मेरे को यहाँ पे IT में जॉब करना है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने अपना कोर्स चेंज करा लिया। तो इट्स इजियर, मतलब काफी इजियर है। जो हम लोग जो है सुनते हैं या पढ़ते हैं वैसा टफ नहीं है, वैसा टफ नहीं है। अच्छा एक चीज और बता दो सबको कि आपका खर्चा क्या आया ड्यूरिंग द प्रोसेस। सिर्फ जो फी यूनिवर्सिटी की वो आपने पहले दी थी या बाद में, बस इतना क्लियर कर दो लोगों को। यूनिवर्सिटी की फीस तो यहाँ पे आने के बाद, मेरे को आके 2 हफ्ते हो चुके हैं यहाँ पे, और अभी तक मैंने फीस नहीं दी, मेरे को कल देनी है अभी फीस। एंड दैट टू वी हैव द डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट ऑप्शंस। कुछ यूनिवर्सिटी आपके पास सेमेस्टर वाइज फीस लेंगी, और कुछ उसको महीने को भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब आपको हर महीने उसको डिवाइड कर लो, आपकी सेमेस्टर जो चलता है 3 से 4 महीने का चलता है, उसको डिवाइड कर लो। 3 महीने के बाद भी दे सकते हो, एक साथ भी दे सकते हो, 2 साथ भी, 2 मतलब डिपेंड यूनिवर्सिटी के ऊपर रहेगा। कुछ यूनिवर्सिटी देंगी आपको ये ऑप्शन, कुछ नहीं देंगी आपको, लेकिन जो भी फीस देनी है आपको यहाँ पे आने के बाद देनी है। और आपने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा, मेरे को कितना खर्चा आया, टिकट मिला के मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख तक मेरे को टोटल खर्चा आया यहाँ पर पहुंचने। 1-1.5 लाख रुपए में आप US पहुंच के 5 साल का वीजा ले। जो आपने खर्चा किया वो आप कवर कर लोगे विद इन अ मंथ। वो तो 1 महीने में कवर हो जाएगा सर। राइट। तो थैंक्स अ लॉट मिस्टर दीपक फॉर ज्वाइनिंग। मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा था कि कल लोगों से आपको मिलवाया जाए, तो फाइनली टुडे मेरी तरफ से डिले था, सॉरी। मेरा थोड़ा सा काफी सारी चीजें पेंडिंग थी, एज यू नो मैं अभी आके मेरे को 10-12 दिन ही हुए हैं, तो काफी सारी पेंडिंग थी और कुछ चीजें परचेज करनी थी, काफी सारी एडजस्टमेंट थी। आई मीन अभी हम सेटल है, तो वी आर गुड टू गो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अगर गाइस आपको और भी कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। I-20 लेने से वीजा लेना और वहां जाके पढ़ना और जॉब लेना भी बहुत आसान है। हम लोग आपकी जॉब में भी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस या IT फील्ड में पढ़ना चाहते हो, आप पढ़िए। उसके बाद जॉब दिलवाने की, जॉब की ट्रेनिंग की जिम्मेवारी भी मैं उठाऊंगा, और आपको जॉब दिलवाने के लिए वो सारी चीजें अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, यू कैन विजिट आवर ऑफिस, एंड बाकी की चीजें हम बैठ के करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, एंड थैंक मिस्टर दीपक। 21 साल के गैप के बाद स्टडी वीजा आया है US का दीप जी का। किसी भी बंदे का किसी भी एज में स्टडी वीजा लिया जा सकता है। अगर आप बता सकते हो अपनी पढ़ाई के बाद जो गैप है 20 साल का, 15 साल का, उसमें क्या किया, जस्टिफाई कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास एक स्टोरी है कि अब मैं क्यों पढ़ने जा रहा हूँ इस एज में, तो आपको कोई भी एम्बेसी वीजा देने से मना नहीं करती। बहुत सारे लोगों के हमने US एंड कनाडा के 35 इयर्स के बाद 40 इयर्स में वीजा लगवाए हैं। इनका वीजा भी 41 साल की एज में है, 41 इयर्स इनकी एज है। अगर आपके कोई डाउट है, कोई सवाल है, आपको नहीं पता आपके लिए क्या कहानी बनाने पड़ेगी गैप के बाद, गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, गैप को कवर कैसे करना है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हो।